Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to British English Language class. Please follow the rules everyone. Mute your mic. Hurry up. Walaikum assalam. Hurry up, girls. Hurry up, please. Mute your mic. And open the PDF file. जो WhatsApp पे है, फाइल को ओपन कर ले. कौन फाइल को ओपन करना है? PDF फाइल. जो आपके साथ शेयर होंगे. मेरे पास तो कोई भी फाइल नहीं आई है शेयर. Oh my God. Why am I going to Salam. Okay, guys, please mute your mic as I'm going to start the class. Hurry up, hurry up. Okay, it's okay. It will be fun, inshallah. Alaikum assalam to everyone. Okay, सबसे पहले अपने माइक्स को म्यूट कर लें. हरी अप गर्ल्स. वबरकातुहू. Assalamu alaikum to everyone and walaikum assalam. Okay? So be attentive, girls. It's our second try class. I'm going to start the class. Be attentive. Hurry up. There are 4 points, 4 things that we need to keep in our mind before starting to learn English language course. 4 points are here we need to understand for starting a course or this course. Or these 4 points are not just for English language course, and ये 4 points जो है हमारी जिंदगी में. प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर लें. माई स्वीट गर्ल्स, प्लीज. ये 4 पॉइंट्स जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास में, ये सिर्फ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में नहीं बल्कि हमें लाइफ टाइम के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनको अंडरस्टैंड करना. ठीक है? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग कि हमें इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. तो स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम वी कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, एंड सम स्टूडेंट्स आर लाइक मैम नो वी कांट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. So, and we are not confident while speaking English. So, according to me, there is a lack of knowledge. अगर आपके पास rather than we are not speaking, we are not confident while speaking English, तो आपके पास जब proper knowledge होता है ना किसी चीज को लेके, तो आप फिर उस पे स्पीकिंग भी कर सकते हैं. ठीक है? जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है इंग्लिश को लेके, बिकॉज इंग्लिश के डेप्थ बहुत ज्यादा स्टूडेंट स्पीकिंग. For example, I'm an English expert. So it's not like that कि I know each and everything, the synonyms, the homophones, antonyms, each and everything. आपका learning level, learning process lifetime के लिए चलता है, कभी भी end नहीं होता. तो जब आपके पास आपके concepts clear होते हैं इंग्लिश को लेके, then you can speak English easily. ठीक है? So 4 points जिनको आज हमने क्लास में डिस्कस करना है. The first point is here. Strong decision. Mazboot irada. Strong decision means like, do you tell people that you are going to learn English or going to start to learn English? अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि आपने किसी के साथ डिस्कस किया कि मैं इंग्लिश लर्न करने जा रही हूँ या मैंने अपना ये गोल सेट कर लिया है. First of all, you need to know that
if you want to achieve something in your life, you must have a goal until you achieve it. गोल्स को आपने सेट करना है, ठीक है, क्योंकि कोई चीज आपको चाहिए, आपकी गोल्स हैं, इट्स योर लाइफ. यस, okay, so if you want to achieve something in your life, you must have a goal, okay, until you achieve it. You don't tell people like because people are like people take your mindset out of there and demotivate you a lot. So you must yes, okay. ज्यादा आपको पता है कि लोग क्या कहते हैं. अगर आपकी फैमिली है, आपके जो वेल विशर्स होते हैं, यू ऑब्वियसली यू मस्ट टेल योर वेल विशर्स, ओके. आपके वेल विशर्स आई थिंक आपके सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. इसके अलावा आपका वेल विशर कोई नहीं होता, आप उनको बता सकते हैं. लेकिन इसके अलावा लोग क्या करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपका माइंडसेट खराब कर देते हैं. तो keep in mind, you don't have to tell anyone what you are going to do unless you don't achieve it. And otherwise, if you tell in advance and after that you wouldn't achieve it. For example, what I want to tell you girls, कि अगर आपने अपनी लाइफ में, I am not just talking about the English language course, अगर आप अपनी लाइफ में आपने एक गोल सेट कर लिया, ठीक है, अगर आपने लोगों को बता दिया, सबसे आपने डिस्कस कर दिया, बाद में आप उस गोल को अचीव नहीं कर सके, तो लोग क्या कहेंगे? पीपल विल लाफ एट, ठीक है. पीपल डोंट नो हाउ हार्ड यू हैव वर्क टू अचीव दिस थिंग, ठीक है, बट दे लाफ. उनको नहीं पता आपने कितनी मेहनत की है. तो यू मस्ट नॉट टेल देम. नॉट टेलिंग पीपल इन एडवांस व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करना है और अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करना है. मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन इज लाइक द बीइंग कैप्टन ऑफ योर ऑन शिप. लाइक के लोगों के साथ अपने डिसीजन को, यू आर ऑल यंग एडल्ट्स, ओके, वी आर ऑल एडल्ट्स हियर. आप सब अपने फैसले खुद कर सकते हैं. और हमें पता है कि हमें एक लैंग्वेज, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ स्किल, ठीक है. सो लैंग्वेजेस, अब जितनी भी अराबिक लैंग्वेज अगर आप देख लेते हैं और इंग्लिश लैंग्वेजेस, इंग्लिश के अलावा पहले होता था कि इंग्लिश की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, अब अराबिक लैंग्वेज की भी बहुत ज्यादा डिमांड है. तो बहुत ज्यादा हमारे में जो विमेन है, ये इस चीज को भी अब सीख रही है कि अब हमें अराबिक लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है. तो आपने that you learn English will discover new words, new phrases that will help you to express your thoughts and your opinions confidently. आपको पता है कि अब बहुत ज्यादा इंटरनेशनली तौर पर ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है. अगर आप 4 लोगों के दरमियान बैठते हैं ना, तो उनमें से 2 लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं. तो अगर आपने अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस लोगों तक पहुंचाने हैं ना, तो आपको भी इंग्लिश को लर्न करना पड़ेगा. So you will learn to say yes to opportunities and no to things that might hold you back. आपके डिसीजंस हैं, आप yes देख लें, आपने yes करना है या no करना है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ एंटर हूं और फिर देखें कि मैं इंग्लिश में कहाँ स्टैंड करती हूँ, ठीक है. हर चीज टाइम टेकिंग होती है, आपको भी पता है, ठीक है. जो भी प्रोसेस है वो टाइम लेता है. अब ये नहीं है कि आफ्टर 1 or 2 वीक्स आप बोलें कि नो मैम अभी तक स्टिल आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो मैं तो इस कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं नहीं कर सकती. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बट ठीक है. ये जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने जर्मन जापानीज सीखनी है, तो क्या मैं 1 month में लर्न कर सकती हूँ? इवन 3 months आर नॉट इनफ टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज. आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पुट करनी पड़ती है उस चीज के लिए. आपको मैं कहती हूँ कि 20/7, 24 में से 20/7 और उस चीज को देने पड़ते हैं. अगर आप में वाकई इतनी ज्यादा डेडिकेशन होती है, तो आप ऑब्वियसली उस चीज को लर्न कर सकते हैं. तो सबसे पहले उन चीजों को यस करें खुद से, यस और नो, दोनों में ना रहें कि यस नहीं. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अवेल करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यस करें. अदरवाइज अगर आपको पता है कि नहीं ये मेरे टाइप की चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको नो कर दें. लोगों के आइडियाज, उनके ओपिनियंस के साथ नहीं चलें, ठीक है. तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है. सो विद एवरी न्यू वर्ड एंड फ्रेज यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड in making your choices that are right for you after learning the English, okay?
जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, जब आपको पता चलेगा कि मैंने तो आफ्टर 3 months, और के जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, तो आपको पता चलेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया था. So remember, making strong decision takes courage and practice, but with English, you will have the tools to navigate any challenge and steer your ship towards the success. इंग्लिश एक ऐसी चीज है, अगर आप अपनी लाइफ में अभी इसको टेक इट नहीं करने देंगे ना, आफ्टर अभी 2025, इट्स 2025 गर्ल्स, और आपको पता है कि नेक्स्ट वर्ड इज दिस, आने वाली दुनिया आप सबको पता है कि क्या है. तो अगर आपने अभी से इसको नहीं लर्न किया ना, तो आपको आफ्टर मैं नहीं कह रही कि आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 to 3 months आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, उस टाइम पे मैंने रॉन्ग डिसीजन दिया था. ठीक है, so you're done with this. Second point is patience. Patience means सबर. अब सबर क्या है, वही बात आ गई है कि हर चीज टाइम टेकिंग होती है, हमें सबर के साथ चलना है. पेशेंस इज अ की फॉर सक्सेस, क्यों बोलते हैं पेशेंस, सबर, हर चीज में सबर, दुनिया में सबर. इतना ज्यादा सबर को क्यों कहा गया कि सबर करना है हर चीज में, क्योंकि हर चीज आहिस्ता आहिस्ता होती है, वक्त के साथ होती है, फौरन से नहीं. आप अपनी चीजों में बहुत ज्यादा लॉस आपको मिलता है अगर आप किसी भी चीज में जल्दी करते हैं. तो लर्निंग इंग्लिश इज लाइक प्लांटिंग अ सीड इन द ग्राउंड, यू नो गर्ल्स. ये आपकी स्किल्स को बूस्ट करना, स्किल्स को एनहांस करना, आप में आपकी जितनी स्किल्स हैं उनको बाहरना, ठीक है, उनको बाहर लाना आपके अंदर से. इट टेक्स टाइम, केयर एंड पेशेंस टू ग्रो, यू नो. जैसे हमें एक ट्री चाहिए, तो आप कितनी जल्दी एक ट्री, मैं कहूँ कि आप कितनी जल्दी एक ट्री को ग्रो कर सकते हैं. एक सीड आप लाते हैं, अगर उसे ग्राउंड में आप जो है ना वो हमसे बोते हैं, कितना टाइम लगता है ना, लाइक उसको एक ट्री बनने के ना. तो केयर भी चाहिए उसको, पेशेंस भी चाहिए, टाइम टेकिंग भी है वो चीज. So just as a seed needs water, sunlight, nourishment to bloom, so your English skills need practice, persistence, and patience to flourish. So don't worry if you don't understand something, if you don't understand something at first or make mistakes along the way. But with the patience, with the practice, you'll see your progress grow and your hard work will pay off. पेशेंस के साथ चलना है, अपने टीचर के साथ रहना है. इंशाल्लाह आफ्टर 1 month आप खुद में बहुत ज्यादा चेंज देखेंगे. ठीक है, आफ्टर 1 month इंशाल्लाह. मैं तो आपके टेस्ट वगैरह जो सब चीजें लूंगी, मैं तो आप में चेंजेस देखूंगी, लेकिन आप खुद में भी देखेंगे. एवरी स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड इज अ स्टेप क्लोजर टू अचीविंग योर गोल्स. गर्ल्स, अगर आपने लाइफ में कुछ बनना है तो गोल्स को सेट करना पड़ेगा. ठीक है, विदाउट सेटिंग योर गोल्स आप अपनी लाइफ में बस चलते जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ का एंड क्या है, आपने कहाँ पर जाना है. ठीक है, तो फिर कोई लाइफ नहीं है आप. ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेट जरूर करें कि आई हैव टू अचीव दिस इन माई लाइफ. ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो. तो अब अगर आपकी लाइफ में गोल सेट है ना, फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है. You just have to stay patient and watch your, like, if you want to learn English, so watch your English skills blossom. Okay? The next is, ignore how people are reacting. This is the most important thing, you know, girls. Ignore how people are reacting. लोगों के रद्दे अमल को नजरअंदाज करें. What it means, ignore people's reactions. Like, yes, okay, people are going to judge you anytime. You know, girls, हम कहीं पर भी होते हैं अपनी लाइफ में ना, तो लोग हमें जज करते हैं. लोगों का जैसे काम ये है कि उन्होंने हमें जज करना है. ठीक है, so when you are learning English, don't worry about what others might think or say. क्योंकि अगर हम अपनी ये तो इंग्लिश को लेके हम बात कर रहे हैं ना, प्लीज बी पुट योर माइक एवरीवन, डोंट डिस्टर्ब. Okay, so ignore how people are reacting.
लोगों के को नजरअंदाज करना है। अब किस वे में करना है हमने कि लोगों को हम कुछ भी बताते हैं ना, लोग कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करते हैं। मतलब लोगों का जैसे काम ही ये है कि उन्होंने कोई ना कोई बात जरूर बनाई है, तो दे आर रिएक्टिंग इन एनी सिचुएशन। आप कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, उन्होंने कुछ ना कुछ रिएक्ट करना है। तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर दैम, उनको इग्नोर करें। ओके, बट लाइक किस तरह से इग्नोर, अब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे कि अगर हमारे सामने कोई एक वर्ड इंग्लिश का गलत बोल देते हैं ना, तो लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इसको तो इंग्लिश आती नहीं है। भाई तक मुझे नहीं आती तो क्या आप नेटिव स्पीकर हैं? ठीक है, अगर आपको आती है तो आप मुझे सिखा दे। लेकिन नहीं, लोग हमें जज करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स नॉट माई मदर टंग, इट्स नॉट माई नेशनल लैंग्वेज। ओके, आप मुझे इससे जज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये ऐसा है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज या प्रोफेशनल लैंग्वेज, जितने भी हमारे बिजनेस, वो सारा कुछ इस तरह से हो गया है कि अब इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सबसे मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ेगा। We are here to learn. No one is here to judge you guys. यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना ग्रुप में, यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स आपके बनते हैं, तो सिर्फ मैंने कहा कि स्पोकन ग्रुप आपकी ईज के लिए, ठीक है, वो आपका ग्रुप है। आप जब चाहें उसमें टेक्स्ट करें, जब वॉइस मैसेज, ठीक है। जो आपका स्पोकन ग्रुप है वो आपके लिए है। आप जब चाहें उसमें स्पोकन में एक वॉइस मैसेजेस करें, बट इन इंग्लिश, ठीक है। जैसी भी इंग्लिश आपको आती है ना, यू जस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश, प्रैक्टिस करनी है उसकी। और आप भी देखेंगे कि आपके लोगों, यहाँ पर कोई भी आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सीखने के लिए आए हैं। सो इग्नोर द गिगल्स। अगर आप कहीं पर अपने सराउंडिंग्स पे लोगों को बताते हैं, या लोग अपनी लाइफ में, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये 4 पॉइंट्स इंग्लिश के लिए तो है ही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप इंग्लिश को लर्न करने जा रहे हैं, तो ये 4 पॉइंट्स इसके लिए तो, लेकिन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इग्नोर द गिगल्स, द विस्पर्स और द डाउट्स। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, योर ओन प्रोग्रेस एंड योर ओन गोल्स, ठीक है। लोगों को स्पोकन ग्रुप में कब से ऐड किया जाएगा? ऑब्वियसली आफ्टर द ट्रायल क्लासेस डियर। Okay, so don't worry about this thing. It's so difficult, ma'am, to ignore people. But remember, every great achiever had a start to somewhere, and every great expert was once a beginner. ठीक है? आपको क्या लगता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो कभी बिगनर नहीं थे? उनसे मिस्टेक्स नहीं होती थी, या उन्होंने लोगों के रिएक्शंस को नहीं देखा था? ठीक है, उन्होंने लोगों को इग्नोर नहीं उन्हें करना पड़ा। People may react in different ways, but your determination and you can say your perseverance will prove them wrong. ये नहीं है कि अगर किसी ने आपके साथ कोई बात कह दिया तो आप उनको आगे से जवाब दें कि नहीं, आप तो इस तरह कह रही है, मैं करके दिखाऊंगी। नो, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट सेइंग दिस। आपने 3 मंथ्स में उनको, अगर कोई आपको कह रहा है ना नहीं आप तो ये कर ही नहीं सकती, आपको ये कोई एज है आपकी इंग्लिश लर्न करने की? मैंने आपको बताया मेरी 65 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स भी मेरे पास है, 54, 55, 65 तक, ठीक है। 15 से लेकर 65 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स भी मेरे पास इंग्लिश लर्न कर चुके हैं। तो आपको भी जहां पर भी स्टैंड करते हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो आपने उनको प्रूव करना है रॉन्ग, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप पुशिंग फॉरवर्ड योरसेल्फ एंड शो द वर्ल्ड what you are capable of. आप कितने काबिल हैं ये उनको नहीं पता, आपने खुद को बताना है कि I know I am this. Assalamu alaikum, how are you? And I'm gorgeous. Okay. Okay, so we are done with this. Ignore how people are reacting. तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि लोगों के रिएक्शंस को नजरअंदाज करना है। लोग जैसे भी रिएक्ट करें उनको रिएक्ट करने दें, क्योंकि लोगों का काम है कि उन्होंने रिएक्ट करना है। हमारी क्या स्किल्स हैं ये सिर्फ हमें पता है, और हम इन फ्यूचर कैसे शाइन कर सकते हैं ये भी सिर्फ हमें पता है, लोगों को नहीं पता। लोगों में आज भी कैपेबिलिटी नहीं है, ना इन फ्यूचर उन्होंने इतने काबिल होना है, उन्होंने आपको भी नहीं होने देना,
तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं ना तो उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, और कल वो आपसे ट्रस्ट की गर्ल्स, कल वो आपसे पूछेंगे कि आपने इंग्लिश कहाँ से लर्न की, आपने कैसे सोचा, आपने अपने गोल्स को कैसे सेट किया, आपने उनको कैसे अचीव किया। ठीक है, ओके। सो the next point is, don't be, you're right, ma'am. Even someone said me, when you speak English, come and tell me that you can speak, I can write, but speak not. It's okay, Sana Javed. You just have to ignore them, okay? Fourth point is here, don't be afraid of making mistakes. Don't be afraid of making mistakes, girls. गलतियां करने से कभी नहीं घबराना। इसका क्या मतलब है? आपके लोगों को हमने इग्नोर कर दिया, सब कुछ कर दिया, हमने अपने गोल्स को भी सेट कर दिया, ठीक है। अब हमने टेकन कर लिया, हर जगह पर आ गए, अपने साथ फेलोज में आ गया, हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब मिस्टेक्स हो रही है, इसका क्या करें? हम तो हम बहुत ज्यादा शाय पर्सन है और हमें तो शर्म भी आ रही है और खौफ ज्यादा भी है। बट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग. Do not be afraid of making mistakes. If you are not making mistake, then you are not doing anything. Mistakes are proof that you are trying. गलतियां इस बात का सबूत होती है कि thank you so much. Okay. गलतियां इस बात का सबूत होती हैं कि आप जो है ना कुछ बनने की, कुछ करने की कोशिश कर रहे, ठीक है। If I make mistakes, it means I am trying. Suppose I am not making mistake, it means I am not trying to speak. अगर मैं गलतियां ही नहीं कर रही, इसका मतलब मैं बोल भी नहीं रही. And the other person who make mistakes is better than me because he speaks. One day he will be fluent and confident. ठीक है, वो तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं होंगी, क्योंकि मैंने क्या किया कि मैं सिर्फ उस पे हंसती रही, ठीक है, और मैंने खुद को बेहतर नहीं किया। तो गलतियां, वो पर्सन जो गलतियां करता रहा उसने इम्प्रूव भी किया, उसने कॉन्फिडेंट लिया, बिकॉज व्हेन यू डोंट स्पीक you don't improve, and when you don't improve you don't be confident. And it's not important. Confident is not important. Confident is your requirement. You need confidence in every walk of your life. आपको ये जरूरत है कॉन्फिडेंस की, जहां पर भी आप चले जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो आप कहीं पर भी अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। सो आपने कहीं पर भी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, किसी के साथ बात भी कर रही है ना, इवन दैट आपने किसी के साथ, तो आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो वो पर्सन आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तो गलतियां करेंगे तो कुछ लर्न करेंगे। तो मिस्टेक्स आर लाइक स्टेपिंग स्टोन्स ऑन द पाथ ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप लर्न कैसे करेंगे, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राई न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इवन इफ यू आर नॉट श्योर यू विल गेट देम राइट। अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि हमने किस तरह से बोलना है, वर्ड को कैसे स्पीक करना है, ठीक है, ये न्यू वोकैबुलरी वर्ड है, बट हाउ आई कैन स्पीक दिस एंड हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड इन आवर सेंटेंस और फ्रेज, ठीक है, कृपया उसको यूज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो making mistake is a natural part of learning. I already told you, and it's where the magic happens कि आप जब मिस्टेक करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि सारी क्लास चुप है, आपने सोचा कि यहाँ पर मुझे टीचर से क्वेश्चन करना है, जहां पर आपने क्वेश्चन किया, अगर टीचर को आंसर नहीं पता था तो टीचर भी वहां पर लर्न करेंगी, टीचर उस चीज पे सर्च आउट करेंगी, नेक्स्ट डे आपको भी बताएंगी, और आपकी क्लास में जितने 50-80 स्टूडेंट्स आपकी वजह से उस चीज पर लर्न करेंगे तो वो भी आप पर ही उसका जितना भी क्रेडिट है आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज की, किसी क्वेश्चन की कुछ भी आपके माइंड में आता है ना, तो टीचर से जरूर पूछा करें, ठीक है। एंड वेट करना है इस चीज का कि नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इट डिडंट सेम लाइक दैट, अगर मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट टेंस और आप पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम पास्ट में कैसे होगा, इस तरह से नहीं करना। अगर आज हम प्रेजेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर टेंसेस को हम देके चल रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में टेंसेस बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ किया जाता है, तो उसमें पास में एक चीज आती है, और समवन आस्क्ड मी यस्टरडे कि मैम टेंसेस इज इम्पोर्टेंट, तो
tense is important or not. Tenses are important. Present, past, or future are three main tenses. So present means which we are doing it right now, or this is called the present tense, or past, what we did and what we have done, और फ्यूचर वट मीन्स वी डू इन फ्यूचर. लेकिन आपने क्या करना है कि वेट करना है कि अगर आज हम ये पढ़ा रहे हैं, पहले तो पूरा लेक्चर में आपके साथ डिलीवर करूंगी, ठीक है. और इंशाल्लाह आई एम श्योर अबाउट दिस कि जब लेक्चर कंप्लीट होगा ना, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑटोमेटिकली आप पे डिलीवर हो जाएंगे. लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द 20 मिनट्स, ठीक है, जो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में 20 मिनट्स ये क्वेश्चन आंसर्स के, तो आप उसमें मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द लेक्चर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया. तो आप क्या कह रहे थे कि अगर आपकी कोई मिस्टेक्स भी होती है ना, अगर आपकी मिस्टेक्स हो रही है क्लास में, तो इट्स ये आपकी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि आप लर्न कर सकते हैं चीजों को, देन आप ग्रो करेंगे और इम्प्रूव करेंगे. डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है. यू मस्ट वरी अबाउट नॉट ट्राइंग एट ऑल. परेशान इस बारे में हूं कि मैं तो कोशिश ही नहीं कर रही, ठीक है. इस चीज से परेशान होना है कि आफ्टर 3 months जब मैं यहाँ से निकलूंगी मेरे हाथ में सर्टिफिकेट तो होगा, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगी. यहां से परेशान हो अगर होना है तो, ठीक है. लेकिन with every attempt, inshallah, with the practice, you will become braver and the more confident, more skilled in English, inshallah. So, mistakes are just stepping stones to success. तो सबने mistakes करनी है, because mistakes हमें बताएंगी कि हम try करें और mistakes हमें improve करेंगे, inshallah. Zoomers, please rejoin the class.